Hello, everyone. A big warm welcome to all of you on this episode of the expert series of the Special Needs Children podcast. Today, I'm so happy to have with me Dr. Taral Nagda. Thank you so much, Doctor, for agreeing to do this podcast with me. Thank you so much, Chitra. I'm very happy to be here. Thank you. To introduce you properly and formally to all of our listeners, we have Dr. Taral Nagda, who is one of the country's top pediatric orthopedic surgeons and currently is the director of Jupiter Cerebral Palsy Clinic with a special interest in the management of cerebral palsy, hip preservation in children, and deformity correction. Dr. Taral Nagda practices as a pediatric orthopedic surgeon at SRCC Children's Hospital in Mumbai and Jupiter Hospital in Thane. He is associated with ADAPT, formerly known as the Spastic Society of India, also with Impact India and Muskan Charitable Trust. In the last 30 years, his dedication to his profession and zeal to serve people completely, over so many years has won him many accolades and lots of respect across society. Coming straight to your specialty, doctor, cerebral palsy क्या है, doctor? So, cerebral palsy is made up of two words. One is cerebral, which means something to do with brain. And palsy is a condition where your hands or legs cannot move well. It's a movement problem. तो ये जो वर्ड है सेरिब्रल पॉल्सी, दो शब्द का बना है. सेरिब्रल का मतलब है मस्तिष्क और पाल्सी का मतलब है लकवा. So it is a group of many conditions. It's not one condition. Like fever can be because of malaria, typhoid, COVID, many other causes. Cerebral palsy or difficulty in moving your hand or leg because of a problem to a growing brain can be because of multiple problems. So it's not one condition but a collection of conditions. What is specific to cerebral palsy is that it happens in children. And it happens because of injury to the brain, which is a growing brain in growing ages. And third part, which is specific about cerebral palsy, is that this is a disorder which causes difficulty in movements of hands or legs or trunk or talking muscles. So wherever there are muscles, they are not able to work because of this condition. So this is what is cerebral palsy. डॉक्टर cerebral palsy किस वजह से होती है? सो सेरिब्रल पॉल्सी होने की कई वजह हो सकती हैं. जिस कंडीशन पे ब्रेन के अंदर जो एक मोटर कॉर्टेक्स रहता है, जहाँ से जो पूरी हलन चलन की क्रिया का कंट्रोल होता है, उसको इंजरी हो गया तो उस बच्चे को सेरिब्रल पॉल्सी हो सकती है. एक बहुत कॉमन कारण है बच्चे का प्रीमैच्योर होना. और जब एक प्रीमैच्योर बच्चे को डिलीवरी होती है तो ब्रेन का जो मोटर कॉर्टेक्स होता है उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिया. और कई सेकंड के लिए यदि ये ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो उसकी वजह से ये मोटर कॉर्टेक्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना काम सही से नहीं कर पाते. एंड व्हेन न्यूरॉन्स कैन नॉट वर्क, नेचुरली जो चीज़ वो लोग कंट्रोल करते हैं, यानी हाथों की मूवमेंट या पाँव की मूवमेंट, वो सही से नहीं हो पाती. और इसकी वजह से इस बच्चे को सेरिब्रल पॉल्सी हो सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी डिफ़िकल्ट होती है, बच्चा ठीक से डिलीवर नहीं हो पाता, या तो वैक्यूम का सहारा लेना पड़ता है, कई बार फोर्सेप्स लगानी पड़ती है. ऐसे बच्चों में भी सेरिब्रल पॉल्सी हो सकती है. कई बार यदि जो मदर है उसमें माल न्यूट्रिशन है, मदर को हाइपरटेंशन हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, ट्विन डिलीवरीज है, उससे भी हो सकता है सेरिब्रल पॉल्सी. ये पाया गया है कि बहुत कम उम्र में कोई मदर बन जाए या तो बड़ी उम्र में मदर हो जाए तो ऐसे कंडीशंस में सेरिब्रल पॉल्सी हो सकता है. आजकल हम लोग देखते हैं कि कई बार देयर इज़ नो रीज़न, एवरीथिंग इज़ गुड, हॉस्पिटल डिलीवरी है, मदर भी तंदुरुस्त है, फिर भी बच्चे को सेरिब्रल पॉल्सी हो सकता है. और इन कंडीशंस में देयर इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम. सो आजकल चूँकि हम लोग जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग पाते हैं कि ऑलमोस्ट 25 to 30% जो सेरिब्रल पॉल्सी के केसेस हैं, दे आर बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक प्रॉब्लम जिसमें सेरिब्रल पॉल्सी होता है. डॉक्टर सेरिब्रल पॉल्सी से बच्चे के जीवन पर परिणाम क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने सुना है कि जीवन चलने का नाम. सो
जीवन जीना है तो मूवमेंट तो ज़रूरत है। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं चलता हूँ तो पैर हिलते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ज़बान हिलती है। मूवमेंट इज़ नेसेसरी। और ये मूवमेंट कहाँ से कंट्रोल होता है? मूवमेंट हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। ब्रेन में एक सेंटर होता है जो मूवमेंट कंट्रोल करता है। जैसे अपने गवर्नमेंट में कई मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, ब्रेन में एक सेंटर होता है जो मूवमेंट कंट्रोल करता है। सेरिब्रल पॉल्सी में इसी सेंटर का जो काम है वो अफेक्ट होता है। अभी ये मूवमेंट का सेंटर सही से काम नहीं करेगा तो उसका बच्चे पे क्या परिणाम होगा? पहला परिणाम तो ये है कि बच्चे के जो माइलस्टोन है, जैसे बच्चा ग्रो होता है, वो सही नहीं हो पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि 3 महीने की उम्र में चाइल्ड शुड होल्ड द हेड, सर पकड़ना चाहिए। 6 मंथ की उम्र में बच्चा बैठता है। 1 साल की उम्र में बच्चे खड़े हो जाते हैं और 2 साल की उम्र में बात करना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 टू वॉक एंड 2 टू टॉक। तो ये नॉर्मल बच्चे का ग्रोथ का माइलस्टोन्स है। लेकिन सेरिब्रल पॉल्सी के बच्चे में ये माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। बच्चा 9 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, अभी तक बैठ नहीं रहा है। बच्चा 1.5 साल का हो गया, अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है। बच्चे को 2 साल पे बोलना चाहिए, अभी बच्चा 3 साल का हो गया, अभी भी उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो ये हुआ डेवलपमेंटल डिले। दूसरी जो चीज़ हम लोग ये जान पाते हैं कि बच्चों के स्नायु में अकड़न आ जाती है, जिसको बोलते हैं स्पास्टिसिटी। और ये स्पास्टिसिटी क्यों होती है? जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका काम है स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जैसे हम समझे कि उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर हाई वोल्टेज पैटर्न होता है, बहुत गर्मी रहती है। और सेरिब्रल पॉल्सी के अंदर ये गर्मी जो है कंट्रोल नहीं हो पाती। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उसमें ब्रेन से जो करंट होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को ठंडा करने का काम करते हैं। जैसे एसी के अंदर ठंड की जाती है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड को ठंडा करता है। लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स सही काम नहीं करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड में गर्मी बढ़ जाएगी। और ये जो करंट जब मसल्स को मिलेंगे तो मसल्स भी टाइट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्पास्टिक। इसलिए आप पाएंगे कि सेरिब्रल पॉल्सी के जो बच्चे हैं उसमें हाथों में अकड़न हो जाती है, पैरों में अकड़न हो जाती है। और इस स्थिति में दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हड्डियां बढ़ती रहती हैं, उनकी हाइट बढ़ती रहती है, लेकिन जो स्नायु स्पास्टिसिटी से ग्रस्त है वो स्नायु जो है अपनी लेंथ उसी प्रमाण में बढ़ा नहीं पाते। जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे आपका एक्सपेंस बढ़ता है इनकम भी बढ़ना चाहिए तो ही सेविंग हो पाएगा। लेकिन सेरिब्रल पॉल्सी के बच्चों में बोन की लेंथ बढ़ रही है लेकिन मसल उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये जो पेशेंट है उसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटीज भी हो जाती है। सो शुरुआत हुई थी ब्रेन अफेक्शन से, उसके बाद स्पास्टिसिटी हो गई, बच्चे सही तरह बैठ नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्चर हो गए और उसके बाद डिफॉर्मिटी हो गई। तो इन बच्चों का जीवन जो है टाइम बाय टाइम ये सारी क्षमताएं जो बाकी बच्चों से जो उसी उम्र के होते हैं उससे कम हो जाती हैं। अगेन cerebral palsy is a spectrum. There are children with cerebral palsy who have difficulty in standing and walking. There are children with cerebral palsy वो चल सकते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते। There are children with cerebral palsy who are just on the bed और बिल्कुल खा भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, हाथ से कोई चीज़ उठा भी नहीं सकते। सो इट्स अ बिग स्पेक्ट्रम। लेकिन ये सारी चीज़ें सेरिब्रल पॉल्सी के अंदर होती है। ये भी जानना ज़रूरी है कि सेरिब्रल पॉल्सी इज़ नॉट जस्ट मूवमेंट प्रॉब्लम। जो कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं तो एक टीम के अंदर आते हैं। वैसे सेरिब्रल पॉल्सी के कई बच्चे जो होते हैं उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकता है। कई बच्चे होते हैं उनको स्पीच का भी प्रॉब्लम होता है। कई बच्चों में विजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कई जो बच्चे हैं उसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है। ये जानना लेकिन ज़रूरी है चित्रा कि सेरिब्रल पॉल्सी और मेंटल रिटार्डेशन इसमें फ़र्क है। देयर आर चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पॉल्सी हु आर वेरी इंटेलिजेंट। वी हैव चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पॉल्सी who have become doctors, who have become engineers, who have become chartered accountants, who have done startups, and they are leading a very, very good life. There are children with cerebral palsy who can cook good food. There are children with cerebral palsy who interact very well. They are very good at Paralympic sports. So it is not end of the world. Cerebral palsy is a condition. ये कोई बीमारी नहीं है. It is a condition.
And children with cerebral palsy and adults with cerebral palsy are as good human beings as any one of us. जैसे हमारे केस में डॉक्टर इट हैज़ बीन सेरेब्रल पॉल्सी एंड ऑटिज्म, सो हमारे बेटे को विजुअल इम्पैक्ट है, बट नॉट स्पैस्टिसिटी, द अदर एंड ऑफ इट, Right. तो लूज मसल टोन, उस पर काम किया गया, एंड ऑटिज्म केम एडिशनली एंड देयरफॉर देयर इज नो स्पीच. सो डॉक्टर, व्हाट अबाउट इंटरवेंशन कि जब सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में पता चलता है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट या रेमेडी करना है वो कब शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, किस तरह से किया जाता है? Absolutely. जो सेरेब्रल पॉल्सी का डायग्नोसिस और इलाज जितना जल्दी संभव हो पाए करना चाहिए. द इशू इज इन चिल्ड्रन द ब्रेन इज इन ग्रोइंग फेज. एक ब्रेन का प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी या तो न्यूरोप्लास्टिसिटी. सो बाय स्टिमुलेटिंग अ यंग ब्रेन इट इज पॉसिबल कि सेरेब्रल पॉल्सी के कई चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं. सो जितना जल्दी आप ये सफ़र शुरू करेंगे इतना ही आपका सफ़र आसान हो जाएगा और सफ़रिंग कम होगा. हाँ जी. ठीक है. जो सेरेब्रल पॉल्सी है उसका जो इलाज किया जाता है उसके लिए कई सारे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रॉब्लम्स भी कई ज़्यादा हैं और अलग अलग है. जैसे एक टीम है, क्रिकेट की टीम है, तो यू नीड अ बैट्समैन, यू नीड अ बॉलर, यू नीड फील्डर्स, यू नीड अ गुड विकेट कीपर, ऑफ कोर्स यू आल्सो नीड एन अंपायर. उसके बिना क्रिकेट का गेम हो नहीं पाता. वैसे फाइनेंस के क्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी है, गोल्ड है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. लेकिन इसी वैसे ही सेरेब्रल पॉल्सी को ट्रीट करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट. जो एक स्पेशलिस्ट हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, उनका काम है कि इसको डायग्नोस करें. कई बच्चों को एपिलेप्सी है तो उसकी दवाई दें, टाइटनेस कम करने की दवाई दें, यदि ऑटिज्म है तो उसके लिए दवाई दें. तो उसका काम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं. वैसे ही हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो मसल के अंदर टाइटनेस है उसको कम करना, उसके अंदर पावर बढ़ाना, इसका काम है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट का, जो बच्चों को चलना सिखाते हैं. हाँ. उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, तो उनका काम है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे करना. बच्चा खाना कैसे खाए, बच्चा टॉयलेट कैसे जाए, बच्चा कपड़े कैसे पहने, स्कूल कैसे जाए, हाउ ही विल लर्न, ऑल दिस इज डन बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. देन बच्चे को बोलना होता है, यदि जिनको बोलने का प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं. देन देर आर ऑर्थोटिक, कई बच्चों को स्प्लिन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक स्पेशलिस्ट होते हैं. बच्चों को स्कूल जाना है तो स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी. बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. सो इट इज़ अ टीम वर्क. एक आदमी से या एक डॉक्टर से काम होने वाला नहीं है. एंड दिस टीम वर्क्स विद द पेरेंट्स. हम लोग जो मानते हैं कि पहले जो था कि डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते थे कि बच्चे का ऐसे इलाज हो जाएगा, आज हम उस चीज़ में नहीं मानते. हम मानते हैं कि सबको इकट्ठा होकर वो बच्चे के लिए ट्रीटमेंट करनी है. तो उसको बोलते थे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. लेकिन अभी जो है वो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें पेरेंट्स भी ये डिसीजन मेकिंग और जो भी ट्रीटमेंट हो रही है उसका एक हिस्सा होते हैं. एंड दिस इज समथिंग वेरी Virtually like the umpire. जो आपने बोला. what happens in a match, in a cricket match, बैट्समैन आता है जाता है, बॉलर आते हैं जाते हैं, लेकिन अंपायर एक ही आदमी है जिसको हर टाइम फील्ड पे रहना पड़ता है. हाँ जी. वैसे डॉक्टर बदली होते रहेंगे, उनका रोल चेंज होते रहेगा, लेकिन पेरेंट्स के लिए हमेशा अपना जो बालक है सीपी का, वो पेरेंट्स को उनके साथ रहना पड़ता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स टुडे आर एजुकेटेड. We must make them skillful to make the right choices for their children. And it's important for all doctors कि पेरेंट के साथ बात करके ऐसा ट्रीटमेंट मेथड चूज करें which is empowering to them and the children. Absolutely. वेरी 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 वेल सेड. क्योंकि अगर एक तो पार्ट ऑफ अ पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जहाँ पर एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं, बिल्कुल. हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं कि हमारी ये कठिनाइयाँ हैं और हम इस तरह से इसको सुलझा रहे हैं. एंड जैसे आपने बोला, हमारे लाइफ में भी फर्स्ट 7 इयर्स जब तक श्रवण खड़ा हुआ तब तक तो ये सब लोग को मिल चुके हैं, और उसके अलावा सेंसरी इंटीग्रेशन भी एक एडिशनल था, म्यूजिक थेरेपी, ये सब
सब कर चुके हैं, एंड यू नो वी हैव अराइव्ड एट अ स्टेज टुडे where yes, the cerebral palsy is there. There's a lot of fine motor issues, but the gross motor are at least in kabu because of extensive intervention and therapy. पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बोलते हैं एक है तो सेफ है. दिस इज अप्लाइज ऑल्सो टू पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स फॉर सेरेब्रल पॉल्सी. डॉक्टर, आपका रोल क्या है एज अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन इन सेरेब्रल पॉल्सी? आप क्या करते हैं? सही बात है. मीन्स जब भी हम लोग बात करते हैं सेरेब्रल पॉल्सी, हमारे ध्यान में आता है ये तो ब्रेन का प्रॉब्लम है. और कई लोग पूछेंगे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये तो ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ हड्डी का डॉक्टर क्या कर रहा है. द रीजन वाई अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन इज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी इज दैट जब ब्रेन में इश्यू होता है, हम लोग जान गए कि अभी स्पास्टिसिटी होती है, मसल टाइट हो गए. मसल के टाइट होने से डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, और ये जब डिफॉर्मिटीज़ होती हैं तो जो बच्चा चलने योग्य है वो भी चल नहीं पाता. आपकी गाड़ी का इंजन थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन गाड़ी पंचर हो गई तो बिल्कुल गाड़ी चल नहीं पाएगी. हमारा काम है कि स्ट्रक्चरली बॉडी को अलाइन करना, ताकि बच्चे के अंदर जो क्षमता है वो पूरी बाहर आ सके. जब मसल्स में स्पास्टिसिटी होती है तो हम लोग कई बार ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं. बोटुलिन टॉक्सिन करके एक इंजेक्शन है, या तो अल्कोहल इंजेक्शन है, जो मसल में दिए जाते हैं मसल की टाइटनेस कम करने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो सही से चल पाए, उनकी थेरेपी अच्छे से हो पाए. कई बार मसल्स जब शॉर्टन हो जाते हैं तो मसल को लेंथन किए जाते हैं. जो मसल लेंथनिंग सर्जरी है वो मसल को वीक भी करती है. तो इसीलिए हम लोगों ने एक नई उपचार पद्धति का इन्वेंशन किया है, जिसको बोलते हैं परक्यूटेनियस मायोफेशियल लेंथनिंग. तो एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है, जिसमें कोई ओपनिंग नहीं होता, चीरफाड़ नहीं होती, स्टिचेस नहीं होते, लेकिन एक बारीक नीडल से मसल्स का जो अपर न्यूरोसिस है उसको उसमें छेद करके उसको लंबा किया जाता है, ताकि जो बच्चा पंजे पे चल रहा है वो अपनी एड़ी पे सही से चल पाए. जिसके घुटने मुड़े हुए हैं, घुटने सीधे करके चल पाए. जो सीजरिंग या क्रॉस करके चलता है, उस वो बच्चा पैरेलल लिम्ब लेके अच्छे से चल पाए. सो दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी टेक्निक. कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पैर पूरे मुड़ गए, घुटने पूरे मुड़ गए, तो उसमें कई बार बोन में को काट के प्लेट लगा के उसको अलाइन करना पड़ता है, और ये जो ट्रीटमेंट है उसको ऑस्टेटोमी बोलते हैं. तो जो बच्चा है उसको सही से असेस किया जाता है. हम लोग बच्चों को क्लिनिक में देखते हैं, चला के देखते हैं. कई बार उनका गेट एनालिसिस किया जाता है. गेट एनालिसिस के अंदर बच्चा चलता है तभी 8 कैमरास, जैसे हम लोग देख रहे हैं स्टूडियो में 3-3 कैमरे लगे हुए हैं जो अब हमारा छाया चित्रण कर रहे हैं, वैसे 8 कैमरे से बच्चे के चलने का रिकॉर्डिंग होता है, और उसके द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये सारी ट्रीटमेंट है, उसमें से क्या बच्चे के लिए अच्छा रहेगा. जो भी ट्रीटमेंट हम करें, ये ज़रूरी है द डायलॉग गोज ऑन, द डायलॉग बिटवीन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट के साथ डायलॉग, ऑर्थोटिशियन के साथ डायलॉग. क्योंकि एक बच्चा जो चल नहीं रहा है, उसको चलने के लिए सर्जरी तो होगी, लेकिन साथ में अच्छे स्प्लिंट भी ज़रूरी हैं, अच्छी थेरेपी भी ज़रूरी है, और पेरेंट्स का एजुकेशन और उनका सपोर्ट भी ज़रूरी है, तभी वो बात बन पाएगी. बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, थैंक यू सो मच. हमारा सिर्फ यही एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे स्प्लिंट्स की ज़रूरत पड़ी और उसके साथ फिजियोथेरेपी के साथ हम निकल पड़े. लेकिन हाँ, जब इस तरह का अगर सर्जरी करके पेरेंट्स सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं. तो उनको आप क्या बोलोगे? किस तरह से उनको आप हेल्प कर सकते हैं कि ये करना ज़रूरी है? तो जो पेरेंट्स या किसी को भी बोलोगे सर्जरी, तो डर तो लगना ही है. मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, सर्जरी करता हूँ, लेकिन कोई मुझे बोलेगा कि डॉक्टर आपको ये प्रॉब्लम और सर्जरी करना पड़ेगा, देन आई विल ऑल्सो बी स्कैर्ड. सो सर्जरी एंड स्केयर, दे आर इंटर रिलेटेड वर्ड, एंड दिस कैन बी रिजॉल्व बाय 2 थिंग्स. एक तो पेरेंट्स को सही से समझाया जाए, एंड व्हाट वी ऑल्सो डू दैट parents whose children have undergone similar procedure, we make them to talk to parents whose surgery are whose children are going to undergo surgery, and that helps a lot. जब वो देखते हैं कि ये बच्चा चल नहीं रहा था और सर्जरी के बाद अच्छा चल रहा है, एंड देयर नो कॉम्प्लिकेशन,
बच्चे को कोई पेन नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड दे आर हैप्पी, then the parents understand the importance of the surgery. सेरेब्रल पॉल्सी में एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है इज़ हिप प्रिजर्वेशन। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि यदि आपके पैर टेढ़े हैं तो दिखता है, घुटने बैंड है तो दिखता है, लेकिन हिप डिसलोकेशन सेरेब्रल पॉल्सी में जो है इट इज़ अ साइलेंट प्रोसेस। ये धीरे धीरे हिप्स जो हैं डिसलोकेट होते रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब काफ़ी देर हो जाती है, बहुत मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट्स को बहुत छोटे सर्जरी या स्प्लिंट या थेरेपी से अच्छे कर सकते हैं, उनके लिए अननेसेसरी बड़े सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम जो चीज़ प्रमोट करते हैं वो हिप प्रिजर्वेशन है। तो ये एक संदेश है पेरेंट्स को जिनके बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी है, कि जो बच्चे स्पेशली जो चलते नहीं हैं या बैठ नहीं पाते हैं, जिसको ग्रेड 4 एंड 5 जीएमएफ सेज बोलते हैं, उनमें हर साल हिप एक्सरे होना चाहिए ताकि हिप डिसलोकेशन जल्द से जल्द नज़र में आ जाए। जो बच्चे चलते हैं उनको भी जब एक बार हिप एक्सरे होना ज़रूरी है, और यदि डॉक्टर को लगे तो वो रिपीट होना चाहिए जैसे बच्चा ग्रो होता है, ताकि ये हिप डिसलोकेशन का प्रॉब्लम सेरेब्रल पॉल्सी में हम लोग प्रिवेंट कर पाएँ। ओके डॉक्टर, हमें बहुत ये सुनाई देता है कि इवन इन मेडिसिन, इन सर्जरी, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो चुकी है, तो ये किस तरह से यहाँ पर इस क्षेत्र में लागू होता है? सो इन केस ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी मैं देख रहा हूँ कि जो ये 10 साल में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुए हैं। हम हर क्षेत्र में देखते हैं, जैसे कई साल पहले हम लोग घुमाने वाले फ़ोन यूज़ करते थे और आजकल मोबाइल फ़ोन के साथ घूम रहे हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ। इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पॉल्सी। जिनको एपिलेप्सी है सेरेब्रल पॉल्सी के साथ, देयर आर एपिलेप्सी कंट्रोलिंग सर्जरीज फॉर चिल्ड्रन वेयर मेडिसिन्स डोंट हेल्प। हमारे पास गेट एनालिसिस होता है, एमआरआई होता है, जिससे डायग्नोसिस, स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी और कौन सी जगह पे ऑक्सीजन कम पहुंचा है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आजकल जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं ताकि जिन बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग डायग्नोस कर पाएँ। ट्रीटमेंट जो है उसमें कई मेडिसिन्स हैं अभी, जिससे स्पास्टिसिटी कम हो जाए। जिन बच्चों को सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी मेडिसिन्स हैं। थेरेपी में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जो रूटीन ट्रेडिशनल थेरेपी हुआ करती थी उसके साथ एक्वा थेरेपी मौजूद है। वी हैव रोबोटिक थेरेपी अवेलेबल, वी हैव टेपिंग अवेलेबल, वी हैव प्लास्टर्स अवेलेबल टू करेक्ट द जॉइंट माल अलाइनमेंट्स। सो काफ़ी सारे चेंजेस थेरेपी में हुए हैं। बहुत सारे चेंजेस ऑर्थोटिक्स में हुए हैं, स्पेशल व्हील चेयर्स, कार्बन फाइबर डिवाइसेस, बॉडी सपोर्ट सिस्टम्स विच आर कंप्यूटराइज। सो ये जो सारे चेंजेस हैं उसका लक्ष्य एक ही है कि जो बालक या व्यक्ति सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त है उसका जीवन आसान बनाया जाए, एंड वी अलाउ दैट पर्सन टू रीच हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। हर बच्चे में एक क्षमता है, सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे में भी एक क्षमता रहती है, लेकिन काफ़ी सारी वजह से वो क्षमता अचीव नहीं कर पाता। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये इन सारे प्रयत्नों से सीपी के जो बच्चे हैं वो अपनी क्षमता अचीव कर पाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के नाम पे कई बार दुरुपयोग भी होता है। जैसे स्टेम सेल ट्रीटमेंट है, इट इज़ स्टिल एक्सपेरिमेंटल एंड वी रियली डोंट नो हाउ मच सक्सेसफुल इट इज़। बट कई लोग स्टेम सेल के नाम पे पेरेंट्स के साथ एक जो ट्रीटमेंट प्रूवन नहीं है, देखते हैं कि रॉन्गली वो स्टेम सेल किए जाते हैं और कई बार इन बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो पेरेंट्स शुड इवैल्यूएट एनी न्यू टेक्नोलॉजी। कि जो नया है वो अच्छा है वैसा नहीं है, जो नया है उसकी परख होनी चाहिए और वो सही है तो ही बच्चों पे यूज होना चाहिए। बहुत बहुत सही बोला आपने। थैंक यू फॉर मेंशनिंग अबाउट स्टेम सेल आल्सो। एंड यही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने जो बोला कि जल्दी से जल्दी एक बार डायग्नोसिस हो गया तो फिर देन हाउ द पेरेंट्स नीड टू लर्न दैट हाँ ये चैलेंज आ गया है लाइफ में, लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर्स और पूरी जो टीम है, जैसे आपने बहुत अच्छे से विस्तारित किया कि
फिजियोथेरेपिस्ट है, प्लस आपके न्यूरोलॉजिस्ट है, आपके पीडियाट्रिशियन है, आपका खुद का फैमिली डॉक्टर है, स्पीच थेरेपिस्ट है। ये सब जो है ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग सडनली लाइफ में आ गए हैं, बट खुद को एजुकेट करना, खुद पढ़ना, खुद को गूगल नहीं, लेकिन एक्चुअल हमारे बहुत सारे ऐसे फैबुलस ऑथर्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट के बारे में समझाया है। उन ये बुक्स पढ़ के इन सब के साथ जुड़ के जो आज एक पेरेंट ने करना है, काम करना है अपने बच्चों के साथ, नॉट ओनली एट द थेरेपी सेंटर, घर पे आकर भी एक प्रोटोकॉल करना पड़ता है खुद को। बाकी जो पेरेंट्स, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कंटिन्यू करना पड़ता है, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, राइट? जैसे बच्चा एज होते जाता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स करके नहीं, बॉडीली ऑल्सो जो चेंजेस हैं वो भी आते रहते हैं ना डॉक्टर। तो क्या आप एडवाइस करेंगे एक पेरेंट को कि आपको वो कंटिन्यूड रखना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे, उनको लगता है कि अभी 10 साल के लिए तो हमने किया, अभी उससे कुछ जमता नहीं है, उसको घर पे रहने दो, और एक लाइफ को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्या? So these are real life questions. कि एक जो पेरेंट है जिसके who has a child who has challenges, special children जो बोलते हैं, lot of part of that life gets centered around the child. और ये संभव है और एक्सपेक्टेड भी है कि आप जब दौड़ते हो तो कितना दौड़ोगे, थकान तो महसूस होती है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक ब्रेक्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक वेकेशंस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक ब्रेक्स। और जब आप मैनेज करते हैं बच्चे को जिसको चैलेंजेस है या सेरिब्रल पॉल्सी है या ऑटिज्म है, it is important to realize you also have to live life. You have to watch movies, you have to read books. Just because your child is a special child, the smile on your face should not be lost. And this is something which keeps you going for a longer time. And acceptance of the condition is very important. Right. Denial does not help you. Acceptance helps you. It is also important to चेंज थिंग्स विद टाइम। जब बच्चा छोटा होता है तो थेरेपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उससे ऊपर बच्चा जाएगा तो टीचिंग हिम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, सोशल स्किल्स, मे बी वोकेशनल स्किल ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। सो जो पूरा गोल है लाइफ का, इट इज अ एवर चेंजिंग गोल, इट डजंट रिमेन सेम। Parents also have to realize that a child with cerebral palsy will grow into an adolescent with cerebral palsy and will grow into an adult with cerebral palsy. And when that child becomes an adult with cerebral palsy, the parents who are young parents will become old people with a child with cerebral palsy. It's very important that parents take care of their own health. They take care of their diet, their sleep, their stress, so that they can manage their child with cerebral palsy in a better way. If they will get health problems when they become 50, 60 and 70, who will look after the child? It's also very important that I have seen many people, many parents with cerebral palsy say that कि ये बच्चे को प्रॉब्लम हुआ, हम लोग दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। But I feel that it's very important for them to create a sibling for a child with cerebral palsy, that so that sibling will take care of the child when those parents are no longer there to take care of the child. So these are all social issues. And I'm sure that when there are issues, there are also solutions. I mean, the biggest thing is that luckily we have so many people to rally around us. और जितना हम हेल्प मांगते हैं उतना मिलता भी है, राइट? एंड दैट इज द वे टू गो अहेड। तो एक स्पेशल चाइल्ड जो है उसको बड़ा करना, उसको पालना पोसना, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। और पेरेंट्स जो है उसके लिए ऑलमोस्ट ये फुल टाइम जॉब बन जाता है। जैसे
सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चा बड़ा होता है, he becomes an adolescent with cerebral palsy, then he will become a young person with cerebral palsy, और उसके बाद he'll become adult with cerebral palsy. और वैसे उसके पेरेंट्स की उम्र भी तो बढ़ रही है. जो यंग पेरेंट्स रहते हैं, जिसको जिसको बच्चा 2-3 साल का है, वही जब बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स जो 30 साल के थे वो 50 साल के हो जाएंगे, फिर 70 ईयर्स हो जाएंगे, उनकी भी उम्र बढ़ती है और उनकी जो कैपेसिटी है उस व्यक्ति की संभाल रखने की वो भी कम हो जाती है. देयर आर प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम होते हैं और आर्थिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं. तो ये जो सिचुएशन है वो थका देती है कई बार. तो उसके लिए कई सुझाव हैं. एक जो सुझाव है कि पहले तो परिस्थिति से दूर ना भागे, उसका स्वीकार करें. एक्सेप्ट दैट योर चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम एंड योर लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स of other children who are similar age. You have to accept it and accept that challenge. दूसरी बात यह है कि प्लानिंग करें. यू प्लान कि आप कहाँ रहेंगे ताकि बच्चे को ट्रैवलिंग इजी से हो जाए. फाइनेंशियल प्लानिंग करें. आस्क फॉर हेल्प. आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, यू आस्क फॉर हेल्प व्हेनेवर रिक्वायर्ड. आपको यदि बहुत कई बार मानसिक और शारीरिक रूप से त्रस्त हो जाते हैं, कीप योर चाइल्ड विद समबडी एंड टेक अ वेकेशन, टेक अ ब्रेक. ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं उनकी अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर स्लीप, डाइट, स्ट्रेस लेवल. क्योंकि आपको यदि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो गया तो आपकी क्षमता है वो बच्चे का ध्यान रखने की कम हो जाएगी. मैं ये भी एडवोकेट करता हूँ पेरेंट्स कि सिंगल चाइल्ड के बाद जिसको स्पेशल है उसके बाद पेरेंट्स ये फील करते कई बार कि दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए. लेकिन मैं कहता हूँ कि दूसरे बच्चे के बारे में सोचिए, क्योंकि इफ दैट चाइल्ड हैज़ अ सिबलिंग, जब आप बड़े होंगे, दैट then the brother or sister will take care of the child. You are leaving behind somebody who will be able to take care of the child when you are old or no longer there. So कई चीज़ें हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि शांत दिमाग से सोचा जाए और प्लान किया जाए तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी हैं. मैं ये भी जानता हूँ कि स्पेशल चिल्ड्रन आर चैलेंजेस, बट दे आर ऑल्सो फन टू बी विथ. They are the most amazing children anybody can have because they give love which says conditions do not apply. डॉक्टर, आखिर में एक सवाल है कि आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में, कि किस तरह से उनके साथ सोसाइटी ने बर्ताव करना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, या पेरेंट्स ऑल्सो, किस तरह से आप क्या बदलाव चाहते हैं इन सेरेब्रल पॉल्सी? Yeah, Chitra, lot of things have changed, but it's still a long way to go. ऐसा मुझे लगता है. So I want to just repeat words of a visually challenged person. जब उनको हम लोगों ने एक हमारे कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट करके बुलाया था और यही सवाल पूछा गया था कि जो विजुअली चैलेंज है उनकी विजन कैसे बदल सकते हैं, हाउ कैन वी मेक देम टू सी बेटर. और उनका आंसर था कि नज़र बदलने से काम नहीं चलेगा, नज़रिया बदलना चाहिए. सो होल इशू इज चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, so that the lives of children who have difficulties and their parents can be made easier. You cannot take cerebral palsy away from the world, but definitely we can improve the lives of children with cerebral palsy and their parents, making them easier, more dignified, bring smiles on their face. और ये छोटे छोटे चेंजेस से संभव है. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,
जिसके अंदर ये जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, दे गो डोर टू डोर इन एवरी विलेज एंड दे कैन फाइंड आउट कि किस बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी या तो कोई बर्थ डिफेक्ट या तो कोई फिजिकल चैलेंजेस है, और उनका काम है कि वो लिस्ट करके उनको सही डॉक्टर तक पहुंचाना। तो ये प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग कई जगह कैंप करते हैं, हम लोग नासिक में हर 2 महीने कैंप करते हैं, और ये आरबीएस के टीम इन पेशेंट्स को और उनके पेरेंट्स को हमारे तक पहुंचाती है। वी जस्ट अनाउंस द टीम डेट ऑफ अ कैंप and they are ready with patients to bring it to doctors who can treat them. So that's a very good program. मैंने ये भी देखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में there is a provision for early intervention center. So पेरेंट्स का ये काम है कि उस डिस्ट्रिक्ट में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर कहाँ है वो खोज करे, और वो सही से चल रहा है या नहीं वो देखे, और यदि नहीं हो रहा है तो राइट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें कि यहाँ चीज़ें ठीक से चलनी चाहिए थी और नहीं चल रही हैं. There is a very good early intervention center run by government, and I'm very proud to say that's one of the best in India, which has now happened in Bombay near Nayar Hospital. Okay. और ये जो सेंटर है in 20,000 square feet, designed by Hafiz contractor, and has everything: physiotherapy, occupational therapy, aquatherapy, gait analysis, जो चाहिए वो सुविधा रन बाय गवर्नमेंट एंड फ्री फॉर पेशेंट्स इज अवेलेबल. फैंटास्टिक. और मेरा विश लिस्ट ये रहेगा कि ऐसे सेंटर्स पूरे देश में उपलब्ध हो. टेकिंग दिस एज अ मॉडल सेंटर, यू जस्ट हैव टू build Xerox machines and copy this and place them all over India, and one major problem will be solved. मैं ये भी चाहता हूँ कि बैरियर्स जो हैं फॉर स्पेशल चिल्ड्रन वो हटाए जाएं. हर जो बिल्डिंग है, हर मॉल है, हर सिनेमा गृह है, every place, platforms or trains, BST buses, everything is modified so that a person on a wheelchair can easily travel in this, or parents can take their child who is on a wheelchair, who is not able to walk, very easily through this. Just imagine आपके पास व्हीलचेयर है, आप चल नहीं सकते, और मुझे बोरीवली से चर्च गेट जाना, आप कैसे जाएंगे? We are restricting lives of people who have disabilities by having a environment which is not barrier free. Yeah. It is also important कि जो बच्चे स्पेशल है और जो स्कूल जा सकते हैं उसके लिए हम लोग प्रबंध करें कि they all get good education. Not only they get good education, they get skills, and it's important that they are all well placed in a profession. उनके लिए जो व्यवसाय है उसका इंतज़ाम भी होना चाहिए. प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि कई बच्चे जो होते हैं सेरेब्रल पॉल्सी को पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्किल भी है, बट वो वर्क प्लेस में एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि बाकी लोगों का जो एटीट्यूड होता है, देयर आर ओनली 2 एक्सट्रीम्स. दया भाव दिखाते हैं या तो अपैथी दिखाते हैं. वी हैव, देयर इज सिंपैथी बट देयर इज नो एम्पैथी, व्हिच इज इम्पोर्टेंट if the attitude of the society changes. Chitra, last month I went to Taj Bhopal and we were very happy to see that at the entrance there were children with Down syndrome to welcome the guests with a very innocent smile. So it is possible that more employment can be generated for people with disabilities with dignity. Absolutely. Okay, and it's very important कि ये सारा जो ये मूवमेंट है ये हर जगह पे जागृत रहे. वी आर सून हैविंग वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, और सिर्फ एक दिवस के रूप में मनाया ना जाए, लेकिन इससे जो फैमिलीज़ हैं जिसमें कोई भी डिसेबल्ड है उसके जीवन में यदि बदलाव आ सकता है तो बहुत ज़रूरी है. मैं गवर्नमेंट को भी वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट एंड टेल देम दे आर डूइंग अ लॉट, लेकिन जो हो रहा है शायद वो पर्याप्त नहीं है, और ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग ऑल दिस. एक जेंटलमैन हैं जो व्हीलचेयर में हैं और उन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट की थी, मिस्टर अरमान अली. उन्होंने बोला था कि चित्रा, अगर मुझे एक कॉफ़ी लेना है और आप दिल्ली में रह रहे हो तो किसको वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तुम्हें या मुझे? गैस करो. फिर उन्होंने बोला कि मुझे, जो व्हीलचेयर में है
वो बंदा अगर उसको कॉफ़ी पीना है, आप कहीं भी जा सकते हो। आपने अगर डिसाइड किया कि किसी एक टी स्टॉल में या कॉफ़ी स्टॉल में आप जाकर ले रहे हो, तो आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन मुझे एक मॉल में जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ व्हीलचेयर एक्सेस अगर है, रैंप है, तो मैं जा सकता हूँ। तो आपने जो बोला वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम आज क्या कर रहे हैं बैरियर ब्रेकिंग के इस होल स्पेस में। क्योंकि उन्होंने ही एक और बात की थी जो मुझे बहुत हिट हुआ था कि व्हेन यू थिंक ऑफ एनी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस के बारे में अगर आप निर्माण कर रहे हो, आप इस तरह से सोचो उस बिजनेस के बारे में कि एक व्यक्ति जो अपंग है, जिसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, और वो आपके जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको खरीदना चाहता है, तो क्या वो एक्सेस कर सकता है? शायद वो उनको दिखाई नहीं दे, तो आपने क्या फैसिलिटी किया है? वो चल नहीं सकते हैं तो आपने क्या किया है? वो बोल नहीं सकते हैं तो आपने क्या किया है? तो आज जैसे आपने बोला, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और जो सर्विसेज हैं, लेकिन आज भी रूरल इंडिया में इसकी तो बहुत ही कमी है। और इवन इन आवर मेजर सिटीज़ यहाँ भी वी आर नॉट येट देयर, बट thanks to people like you, in terms of at least through this podcast, we will be able to reach out to so many parents, to all the people who are associated and who don't shy away from disability. क्योंकि जहाँ पर ये आ जाता है कि एक डिसेबल्ड बच्चे को या अडल्ट को देखकर आप मुंह फेर लेते हो, वहीं पर आपने डिसाइड कर दिया कि वो पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं है। लेकिन इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू and a lot of other people like you that we are able to go ahead in this space. So thank you so much for your time, and thanks a ton for doing this. And I hope everyone who is listening here, you'll love this and you will share this ahead. Thank you. Thank you, Chitra, for having me on this show. And together, we will pray and ask people to pledge that बहुत सारा चीज़ हम लोग नहीं कर सकते. Everyone does that little bit to change this world, and I am sure this world will become a better place for those who are able, those who are specially able, and those who are disabled. Thank you.